નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ હિન્દીની અંદર આપણે જમી હે તેરી હે જમી કાવ્યનો અભ્યાસ કર્યો. હવે એકમ નંબર 2 આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે આપણે ઉદાહરણ તરીકે ભારતની અંદર અલગ અલગ ધર્મ પાળવાવાળા માણસો રહે છે. એ અલગ અલગ ધર્મ પાળવા માણસો એ પાળતા લોકો અલગ અલગ ધર્મના પાળે છે. એ જ રીતે એમના ધર્મની અંદર શું શું રીત રિવાજ હોય છે એ પણ આપણે જોતા હોઈએ છીએ. તો એવો જ આપણે એક પાઠ ભણવાનો છે. બીજું પાઠનું નામ છે ઈદગાહ. ઈદગાહ એટલે ઈદ કી નમાઝ પડને કી જગહ, જ્યાં મુસલમાન પોતાનું, જેમ આપણે હિન્દુઓને મંદિરે જઈને દર્શન કરવાનું હોય છે, એવી જ રીતે મુસલમાનને ઈદ આવે એટલે ઈદગાહ એટલે કે જ્યાં એમની નમાઝ પડવાની જગ્યા હોય છે ત્યાં જાય છે. અને શું કહેવામાં આવે છે? ઈદગાહ. તો આપણે આજે એવો જ એક પાઠ ઈદગાહ વિશે ભણીશું. લેખક છે પ્રેમચંદ. પ્રેમચંદનો જન્મ सन 1880, निधन એટલે કે मृत्यु सन 1936 में हुआ था. उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था. પ્રેમચંદને ઉપન્યાસ લખી હતી અને એમનો જન્મ વારાણસી એટલે કે ઉત્તર પ્રદેશની અંદર લમ્હી નામનું ગામ હતું, એ ગામમાં જન્મ થયેલો હતો. उनका बचपन का नाम धनपत राय था. प्रेमचंद नानपणનું નામ શું હતું? धनपत राय. आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे કે એમનું નામ ઉર્દુની અંદર એ નવાબ રાય લખતા હતા. ઉપનામ એટલે કે એમનું પુરાણું નામ. बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे. પછી એમનું હિન્દીમાં નામ પ્રેમચંદ લખવાનું શરૂઆત કરી. मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्यागी. કે મેટ્રિક એટલે કે 10મું પાસ કર્યા પછી એમને અધ્યાપકની નોકરી મેળવી હતી, પણ તો ગાંધીજીના અસહયોગે ગાંધીજી જે આંદોલન ચાલુ કર્યું હતું એ આંદોલનની અંદર જોડાયા પછી એમને સરકારી નોકરી ત્યાગી એટલે કે છોડી દીધી હતી. गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है. પ્રેમચંદને ગોદાન લખેલું છે એ એમનું સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપન્યાસ ગણાય છે. उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है. પ્રેમચંદને ઉપન્યાસ તો લખ્યું પણ સાથે સાથે કહાની લખી. કઈ કહાની? માનસરોવર. એમાં એમને 1 થી 8 ભાગ માનસરોવરની અંદર લખેલા છે. साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था. प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है. ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है. प्रेमचंद ने ईदगाह एक प्रेमचंद ने ईदगाह कहानी लखी छे. कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है. कहानीની અંદર એક હામિદ નામનો છોકરો છે, એના દોસ્તારો જોડે ઈદગાહ એટલે કે એના નમાઝ પડવાની જગ્યાએ જાય છે. जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है. નાના દોસ્તારો જોડે હામિદ એમના નમાઝ પડવાની જગ્યાએ જાય છે. ત્યાં એના દોસ્તારો ખીલોના એટલે કે રમકડાઓ, મીઠાઈઓ આ બધી ખરીદી કરતા હોય છે. પણ એક આ હામિદ છે એ નાનો હતો, એ એની ઈચ્છાઓને દબાઈને એની મીઠાઈ ખાવાની ઈચ્છા દબાઈ દીધી, રમકડાઓ લેવાની ઈચ્છા દબાઈને એ પોતે એની દાદી અમીનાના માટે એક ચિમટા એટલે કે ચીપિયો ખરીદે છે. इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है. हामिदનો એની દાદી પ્રત્યે કેટલો પ્રેમ છે અને એ પ્રેમના લીધે એ દાદીનો ઉપયોગમાં આવે એવી વસ્તુ એને ખરીદી અને પોતાનો વિવેકપૂર્ણ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। पाठनी अंदर आपने જોઈ શકો હામિદનો ભાવ, એની દાદી પ્રત્યેનો કેટલો ભાવ છે એ જોઈને આપણે ભાવ વિભોર થઈ જઈએ છીએ। તો આપણે હવે જોઈશું પાઠ। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है कि रमजान चालू थाय मुसलमान ने 30 दिवस पछी ईदनो दिवस आवे छे। कितना मनोहर, कितना सुहावत प्रभात है कि सब रोजा एटले के उपवास करवाना दिवसों 30 दिवस पूरा थईने पछी ईद आवे छे ने त्यारबाद मनोहर एटले के मनोहर एटले सुंदर, मनोहर एटले शुं थाय सुंदर, कितला सुंदर सुहावना के सुंदर दिवस सवारे कैसे ईदगाहनो दिवस आवेलो छे। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। हामिद कहे छे कि आजनो सूर्य केटलो सरस अने केटलो प्यारो अने शीतल एटले ठंडो छे। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। हामिद कहे छे कि मानो आपणे ईदनी बधाई देवा आवी रहेलो छे। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। गामनी अंदर गामनी अंदर આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે ईद આવી હોય, તહેવાર હોય તો એનો ઉત્સાહ અનેરો જોવા મળતો હોય છે અને એની તૈયારીઓ પણ અલગ રીતે થયેલી જોવા મળે છે। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ जा रहा है। कैसे कोईनु बटननु जपाना बटननु होतुं नथी तो बाजुमां जईने दोरो लई आवीने ए धागो लई आवीने पछी ए बटन टाँकी दे छे। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, ऐसा कोईना चप्पल जूना थई गया ने तूटी गयेला जोवा मळे छे। त्यारबाद उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। कैसे कोईनो नवा चप्पल सो तो नवा चप्पलनी अंदर छाला पड़े एटला माटे तो कैसे तेल लेवा माटे तेलीना घरे दौड़ीने जाय छे। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। कैसे जल्दी जल्दी बैलो एटले के बळद, बैलो एटले के बळद, बळदोनु कैसे जल्दी जल्दी पानी पीवराई दो। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। कैसे ईदगाह एटले के ज्यां नमाज पढ़वा जवानी जग्या छे त्यांथी घरे आवता आवता केटला वागी जशे, दोपहर एटले के बपोरनो समय थई जशे। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना। कैसे 3 कोस एटले के 3 किलोमीटर जेटलो पैदल एटले के पगथी चालीने जवानो रस्तो छे अने फिर सैकड़ों आदमी के केटला माणसोनी अंदर આપણને મળવાનું અને ભેટવાનું રહેશે। दोपहर के पहले लौटना असंभव है कि बपोरना पहला घरे आवीए ए बात अशक्य छे। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। लड़के ईदगाह आवी छे, ईद आवी छे एटले नाना बाळको बहु ईदने जोईने बहु खुश थया छे। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। कि सब किसी ने बाळकोनी अंदरथी कोईकने रोजा पण राख्या छे, कोईकने दोपहर तक कैसे बपोर सुधीनी अंदर, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह कैसे जाने की खुशीनी अंदर, ईदगाह एटले के ज्यां ईद छे अने बधा माणसो नमाज पढ़वा जई रह्या छे ए जवानी खुशीनी अंदर ए हिस्सो बनी जाय छे। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होगे। कैसे रोजा मोटा माणसों और गहरा माणसों माटे होय छे। इनके लिए तो ईद है। कैसे नाना बाळको माटे तो शुं छे, मात्र ईद ज गणाय छे। रोज ईद का नाम रटते थे। कैसे रोज नाना बाळको ईदनु नाम रट करता हता। आज वह आ गई, अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बाळको कहे छे कि रोज अमे ईदनी राह जोई रह्या हता अने ईद आवी गई छे, त्यारे हवे लोको कैसे जल्दी केम ईदगाह पहोंचता नथी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कैसे
જેના ઈદગાહ જવાનું છે અને એ લોકો તૈયાર થયેલા છે એ લોકોને કહેશે જેબ એટલે ખીચાની અંદર તો કહેશે કુબેર એટલે ધન ભરેલું છે। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। कैसे जेना खीचानी अंदर खासू बधु धन भरेलू जे धन एटले पैसा भरेला छे ए लोको थोड़ी थोड़ी वारे 12 पैसा काढीने गणे छे अने पाछा खीचानी अंदर मूकी दे छे। महमूद गिनता है 1 2 10 12 उसके पास 12 पैसे है। महमूद नामनो छोकरो छे ए पैसा गणे छे 1 2 10 12 એટલે કે 12 રૂપિયા છે એમ કરીને પાછા એ મૂકી દે છે। મોહસિન કે પાસ 1 2 8 9 15 पैसे है કે મહસૂદની જોડે 12 રૂપિયા હતા અને મોહસિનની જોડે 15 રૂપિયા હતા। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। कैसा अगणित पैसा छे ने अगणित वस्तुओं लावशे। खिलौना मिठाइयाँ गेर और जाने क्या क्या लोग बाळको कहे छे हामिद का मोहसिन अने महमूद जोड़े तो अगणित एटले के न गणी शकाय एटला पैसा छे अने न लई शकाय एटली वस्तु पण ए लई शके छे। तो कैसा खिलौना एटले के रमकड़ा पण लई शके एवा छे अने मिठाईओ अने गेर और जाने क्या क्या ए लई शके छे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। कैसा आ बधुं जोईने सौथी वधारे खुश तो हामिद छे। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। कैसा आ बधुं जोईने हामिद बहु ज खुश हतो। हवे गरीब छोकरो सूरत दुबला के एनु गरीब मोढुं जोईने माणस एना पर दया खाता पण दुबलो छोकरो એટલે કે પતલો છોકરો હતો जिसका बाप गत वर्ष के एना पप्पा गया वर्षे ज भगवाने एना घरे बोलावी दीधा हता। फिर एक दिन माँ फिर मर गई। કે થોડા દિવસ પછી माँ पण एने भगवानना घरे जती रही। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। कि हवे हामिद एनी बूढ़ी एटले के गयडी दादी जोड़े अमीना के गोद एटले के खोड़ानी अंदर ज हसतो रमतो रहीने प्रसन्न रहे एटले के खुश रहे छे। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। कि हामिदना पगनी अंदर पगमा जोड़ा एटले के चप्पल हता नहीं। सिर पर एक पुरानी टोपी है। कि एना माथा ऊपर एक पुरानी जूनी टोपी जोवा मળી रही हती। जिसका गोटा काला पड़ गया है। कैसे एना उपरनो गोटो जे होय टोपी उपरनो ए गोटो काळो पड़ी गयो हतो। फिर भी वह प्रसन्न है। कैसे छता पण ए हामिद बहु खुश हतो। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। कैसे अभागिन शो अभागिन एटले के अमीना दुखी थईने अभागिन एटले के अमीना एना पोताना छोकराने अने वहुने खोई बेसीने दुखी थईने एनी रूममां कोठरीमां एटले के एनी रूमनी अंदर बैठी रही हती। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। कैसे अमीनाना घरनी अंदर एक पण अनाजनो दाणो हतो नहीं। अने ए दिवस शुं हतुं पाछुं ईद हती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। कैसे आज अंधकारनी अंदर आ बात जो दुखी थईने निराश थईने एनी रूममां बेसी रही हती। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। कैसे कने बोलाई हती आज आ ईद ने। निगोड़ी एटले दुष्ट ईद को कोने बोलावी हती। अमीना का दिल कचोट रहा है। कैसे अमीनानु दिल बहु दुखी थई रह्यो हतो। गाँव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। कैसे गामना बाळको पोताना बाप जोड़े ईदगाह એટલે કે ईद જ્યાં હતી ત્યાં નમાજ પઢવા જઈ રહ્યા હતા।
हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? कैसे हामिदना पप्पा एक अमीना ही ज गणाती हती ने अमीना सिवाय बीजू कोई हतुं नहीं। उसे कैसे अकेले जाने दे? अमीना विचार करे छे कि हूँ हामिदनो बाप समान छूं, आजे एने एकलो हूँ ईदगाह केवी रीते जवा दूँ? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? अमीना विचार करे छे कि आटली भीड़नी अंदर मारो हामिद कैसे खोवाई जशे तो हूँ शू करीश? नहीं अमीना, उसे यो न जाने देगी। कैसे अमीना विचार करे छे कि हूँ हवे हामिद ने एकलो जवा दईश नहीं। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? कैसे अमीना विचार करे छे कि नानो बच्चू એટલે કે નાનો છોકરો 3 કિલોમીટર કેવી રીતે ચાલી શકશે? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, पगमा कैसे जो चालशे तो छाला पड़ी जशे। जूते भी तो नहीं है, जूते એટલે કે ચપ્પલ પણ એના પગમાં છે નહીં। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। कैसे हवे एनी जोड़े કેટલા પૈસા છે? 2 રૂપિયા જ બચેલા જોવા મળે છે। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। कैसे 3 रुपया कैसे हामिदना खींचानी अंदर है ने 5 अमीना के बटुए में के 5 रुपया अमीनाना डब्बानी अंदर पड़ेला छे। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। कैसे आज तो दुख छे कि आज ईदनो त्यौहार छे अने 5 रुपया अमीना जोड़े अने 3 रुपया हामिद जोड़े बचेला पड़े छे। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। कैसे हे भगवान, कैसे हवे तो तू ज बेड़ो पार लगावीश। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद एनी दादी जोड़े जईने कहे छे कि दादी तू जरा पण डरीश नहीं, हूँ बधानी पहला आवी जईश। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कैसे गाममांथी बधो मेळो ज्यां नमाज पढ़वानो हतो त्यां जई रह्यो हतो ने हामिद पण एना दोस्तारो जोड़े जई रह्यो हतो। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। कैसे कभी के थोड़ी वार कोईक वार हामिद दौड़ीने आगळ जतो रहतो अने एक पेड़ એટલે કે ઝાડની નીચે છાયામાં ઊભા રહીને એના દોસ્તારોની રાહ જોતો હતો। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए है। कैसे हामिदना पगनी अंदर तो जैसे એટલે કે છાલા પડી ગયા હોય એવું થઈ ગયું હતું। वह कभी थक सकता था। कैसे कोई हामिद થાકી પણ શકે એવો હતો। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। कैसे ऊंची ऊंची इमारतें के मकानों ऊंचा ऊंचा आवा लाग्या हता। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चले। कैसे आ तो अदालत એટલે કે हाईकोर्ट है, कॉलेज है અને कलाघर એટલે કે कलाघर એટલે કે कला कोई कृति आवड़ती हो एने त्यां कला सीखवानी घर गणाय छे। आगे हलवाईओ की दुकानें शुरू हुई। कैसे त्यांथी आगळ जाय छे त्यां मिठाईओनी दुकान शुरू थाय छे। आज खूब सजी हुई थी। कैसे आज ये दुकानों पण शणगारेली जोवा मळती हती। इतनी मिठाइयों कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मन होगी। कैसे आटली बधी मिठाइयों कौन खाशे आजे? અને એક એક दुकान पर बहु बधी महंगी महंगी मिठाइयों जोवा मळी रही छे। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। कैसे सहसा के बहु मोगी ईदगाह आवी गई छे। आ कैसे इमली के घने वृक्ष कैसे आंबलीनु वृक्ष केटलू ऊंचू अने एनी छाया पण केटली मस्त छे। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बीच हुई है। फर्श एटले जमीन। कैसे नीचे जमीन छे पण जाजिम बीछी हुई। कैसे एनो छायड़ो आखा जमीन पर पथरायेलो जोवा मळे छे। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। कैसे रोजेदार कैसे जेने रोजा राख्या छे ए लोको एकना पाछळ एक कैसे कहाँ तक चली गई। कैसे एकना पाछळ एक रोजा करवा वाळा त्यां दर्शन करवा जई रह्या छे।
यहाँ કોઈ ધન ઓર પદ નહીં દેખતા કે મંદિરની અંદર કોઈ ધન નથી જોતું અને કોઈ પદ પણ જોતું નથી. પદ એટલે કેટલો ઊંચો માણસ છે. इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए. कैसा ग्रामीणની અંદર કે ગામના લોકો એ વજુ જોતા નથી કે મંદિરની અંદર કોણ આગળ છે, કેટલો મોટો માણસ પાછળ છે અને કેટલો ધનવાન માણસ આગળ છે એવું ત્યાં જોવામાં આવતું નથી. બધાની લાઈનમાં ઊભા રહીને દર્શન કરવા પડે છે. कितना सुंदर संचालन है कैसे મંદિરની અંદર હામિદ કહે છે કેટલું સુંદર એટલે કે સરસ રીતે સંચાલન એટલે કે આયોજન કરવામાં આવેલું છે. कितनी सुंदर व्यवस्था कैसे કેટલી સરસ વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं कैसे હજારો માણસો એક સાથ મંદિરની અંદર પોતાનું સિર એટલે માથું ઝુકાવીને જાય છે. फिर जब एक साथ खड़े हो जाते हैं कि सब फरीथी बधा एक साथे ज ऊभा थई जाए छे. मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है कि सब मानो के सा भातृत्व के सा बधानो भाव एक सूत्रनी अंदर के एक दोरानी अंदर एक आत्माओं ए बधा आत्माओने एक दोरानी अंदर परोएला जोवा मळे छे. नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं कि नमाज पढ़वानो समय पूरो થઈ ગયો અને પછી બધા એકબીજાના ગળે મરી રહ્યા છે. अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है कैसे હવે તો कैसे ઈદગાહની અંદર નમાજ પઢવાનું પણ પૂર્ણ થઈ ગયું, એકબીજાને ભેટીને મળવાનું પણ પૂર્ણ થઈ ગયું. હવે જ્યાં મીઠાઈની દુકાનો અને ખીલોના એટલે કે રમકડાની દુકાનો હતી ત્યાં માણસો બધા જતા હતા. ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है कैसे ગામના લોકો આ ઈદગાહની અંદર આ વિષય પર कैसे મીઠાઈઓ અને ખીલોનાના રમકડા ઉપર બાળકોનો બહુ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો હતો. यह देखो हिंडोला है एक पैसा देकर ચટકેસા અહીંયા તો એક હિંડોળો એટલે કે હિંચકો છે અને એ હિંચકામાં જેને બેસવું હોય એ લોકો પૈસા આપીને બેસી શકે છે. कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है कभी ज़मीन पर गिरते हुए. तो कैसे એ હિંડોળો कैसे ક્યારેક આસમાન એટલે કે આકાશમાં જાય છે તો ક્યારેક જમીન ઉપર ગિરાવી પણ એટલે કે નીચે પાડી પણ શકે છે. यह चरखी है लकड़ी के हाथी घोड़े और ऊँट छड़ों से लटकते हुए है कैसे અહીંયા લાકડાનો હાથી છે, ઘોડો और ऊँट छड़ों से लटके हुए है कैसे એ બધા હાથી ઘોડો લાકડાના દોરાથી લટકાયેલા જોવા મળે છે. एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो कैसे एक पैसा એટલે કે 1 રૂપિયો આપીને બેસો અને 25 ચક્કર મારી શકો છો, 25 ઓટા મારી શકો. महमूद मोहसिन नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं कैसे हामिदना दोस्तारो महमूद मोहसिन नूरे और सम्मी बधा आ घोड़ा અને હાથી ઉપર આંટો મારવા બેસે છે. हामिद दूर खड़ा है कैसे हामिद दूर ઊભો રહીને જોઈ રહ્યો છે. 3 पैसे तो उसके पास है कैसे 3 रुपया જ हामिद जोड़े હતા. अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता कैसे अपने कोष कैसे પોતાની જોડે જે 3 રૂપિયા પડ્યા છે એ પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા એ 3 ચક્કર લગાવી શકે એવો નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલું જે મેં પાઠ ચલાવ્યો એ પાઠનું પુનરાવર્તન કરવાનું છે તમારે અને પછી આગળનો પાઠ આપણે આવતા પિરિયડની અંદર કે આવતા લેક્ચરની અંદર જોઈશું.